बिग एफएम पर क्रिएटर्स कैच अप। धुरंधर 1 हम सभी ने देख ली है। धुरंधर 2 के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं और उसी बीच एक धुरंधर एक्टर से आपको मिलाना जरूर बनता है। टुडे ऑन क्रिएटर्स कैच अप आई हैव विद मी आदित्य, नॉट द डायरेक्टर, द एक्टर आदित्य उप्पल। हाय सर। हेलो, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, सो आरजे अपूर्वा के साथ आप जुड़ चुके हैं। क्रिएटर्स कैचअप में हम अक्सर बहुत सारे क्रिएटर्स से बात कर रहे होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स से बात करते हैं, एक्टर्स से बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आदित्य से एंड ऑफ कोर्स बात होंगी धुरंधर बातें करेंगे। तो सर ऑफ कोर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन दिस शो एंड बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, बट सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी अबाउट योर एक्टिंग जर्नी। Okay, Apurva, acting journey has been phenomenal. Okay. I'll tell you how it happened. You know, you do your school, right? In 11th, 12th, you get to do chance to do school theatre. Yes. तो मेरी जो टीचर हैं सीमा शर्मा मैम है, उन्होंने मेरे को आइडेंटिफाई किया एकदम क्लास से कि यू स्पीक वेल एंड यू शुड प्रॉब्ली गेट इनटू स्कूल थिएटर, यू शुड डू आवर प्लेज। ओके। तो मैं उनका पहला प्ले किया और वो इंश्योरेंस के ऊपर था। Okay. तो मुझे अभी तक जिसे कहता है ना, कोई रीजन नहीं मिला था कि टू फाइंड आउट व्हाट रियली कीप्स मी हैप्पी। पर जब मैंने वो प्ले किया तो वो प्ले करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज समथिंग दैट रियली गिव्स मी एन आई, बिकॉज़ यू नो दैट फर्स्ट टाइम दैट द ऑडियंस विल क्लैप फॉर यू एंड यू नो यू विल डिलीवर योर लाइंस वेल, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Okay. So I think that's how it started. So from school I kind of started pursuing it in my college. I started my own theatre group called Pukar Theatre. I wanted to help everybody who are theatre enthusiasts ताकि वो आ सकें, वो theatre practice कर सकें, चाहे वो writers हैं, actors हैं, directors हैं. They should work and learn. So that's what we wanted to build as a community. And then one day I got a chance to work with Kingdom of Dreams, जो कि बहुत बड़ा musical theatre है, India's one of its kind, जिसके अंदर जंगूरा और झुमरू आपने सुना होगा shows चलते थे. That was one of the biggest theatre experience that I got. But you know, you keep trying and you keep auditioning, but nothing works out sometimes. कुछ रोल मिले। मैंने इससे पहले एक फिल्म करी थी वो मरता, उसके अंदर एक टेररिस्ट का रोल किया था, मेरा नाम अबू था उस फिल्म में। पर वो बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। कुछ कभी कभी आप करके ज्यादा आते हैं, बट जब वो एडिट पे फिल्म कट जाती है तो यू फील यार मेरा रोल कट गया। बट आई वुड से धुरंधर इज देन वन अपॉर्चुनिटी दैट केम आफ्टर गुड 8-9 years. तब तक मैं छोटा मोटा टेलीविजन कर रहा था, टीवी शोज कर रहा था, आई वाज होस्टिंग एंड देन आई वाज also working in my own marketing agency. Because you know, you need to survive, you need to keep going, and that's the most important thing. But then one fine day Mukesh Chhabra called up and he said, you know Aditya, I think the time has come that उनकी टीम से उनका राइट हैंड है पंकज, he called up, he said Aditya, this is the time you should really give this audition. And then we gave an audition, then there was a second audition, then there was a third audition, because if it is Aditya Dhar's film, perfection is something that he is looking for. And then Dhurandhar happened. So I think that has been an acting journey so far. From Dhurandhar 1 I thought it will be done, but then you have a next piece of art coming your way. Okay, that's amazing. तो of course जैसे कि आपने कहा कि आदित्य धर is equals to perfection. How was your experience working with him? Could you please describe that? Phenomenal. I mean, you know, he is how do I say? So I have two Aditya Dhar in my life. Okay. Aditya Dhar, one who is a professional. I respect him as a director and the man that he is, who makes phenomenal cinema. I think we all are his fan. But I think I'm quite lucky. I lucked out that I got a chance to work with him. It was not just you know, I would say a film for me, but an absolutely acting training institute. When you work with a man like this who has got a vision clear, who knows what he wants from his characters, he knows how much he wants, he knows how much you need to change yourself or not change yourself. I mean, you know, when you have a director like this, I think all that you can do is just surrender and listen to him and just deliver it. So that's the profession that I am in touch with. But personally, if you ask me, I have found a brother, mentor. You know, every big day that comes in my life, I make sure I try to wish him. On his big days, I try to wish him. I want to be in touch with him because if I need any kind of guidance, support tomorrow, I'm sure if I ask him, he will always guide well. And it will be absolutely unbiased opinion that he'll have for me. That's very sweet because मुझे ऐसा लगता है कि आप जब प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे होते हैं तो अपने आसपास आप सब कुछ प्रोफेशनल रखना चाहते हैं, बट अगर उसके बीच में कोई एक ऐसा जेम आपको मिल जाए then you should definitely keep it. Yes. Okay. It's like तो
तो जैसे कि अभी आपने कहा दैट यू हैव टू सर्वाइव, एन एक्टर हैव टू सर्वाइव अगर काम नहीं मिल रहा तो Yeah. आई बिलीव दिस रूल गोज विद एवरी आर्टिस्ट। Correct. मतलब हर आर्टिस्ट का यही सीन होता है कि कभी अगर कुछ नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दे हैव टू सर्वाइव। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे टाइम में what are the things that you feel and how do you keep yourself motivated कि हाँ यार मैं ये तो कर रहा हूँ बट मेरा मेन गोल ये है। करेक्ट अपूर्व, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये होता है बिकॉज आई थिंक आप अगर इफ देयर आर एक्टर्स वाचिंग अस और पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी इन दिस इंडस्ट्री हु आर वाचिंग अस, आई थिंक हाँ ये होता है, आपको लगता है कि देयर आर डेज व्हेन आपके पास बिल्कुल काम नहीं होता, यू रियलाइज कि यार अब मैं क्या करूँ, इट्स अ डार्क डे, बट यू नो यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी एंड कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ। इनफैक्ट मैंने ये नहीं किया, ये मैं अभी बोल रहा हूँ, बट आई स्टॉप ट्रेनिंग बिकॉज मैं अपनी डेली लाइवलीहुड में इतना बिजी हो गया, घर परिवार बच्चा, आपको अपना सब कुछ देखना होता है, एंड आई एम अ मैरिड पर्सन, आई हैव 2 kids टू टेक केयर ऑफ, तो मुझे लगा यार क्या करें, मतलब काम तो करते रहना है, बट जब आप अपनी ट्रेनिंग छोड़ते हैं ना, दैट्स वेयर यू मेक द बिगेस्ट मिस्टेक। आपको ट्रेनिंग नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज यू डोंट नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर। So जब मेरे को मौका मिला, then I had to really brush up to my old things, go back to my trainings, go back to my workshops, जो मैंने Kingdom of Dreams में सीखी थी from my prior director Mr. Vikrant Pawar, one of the biggest theater director that in India that he is known for. So वो सब चीजें करनी बहुत जरूरी है because otherwise जब आप फ्लोर पे जाओगे तो आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, and you're working with one of the biggest actors and they are trained and they're talented and like what, अगर आप वहां जाके कुछ भी नॉर्मल करते हो तो वो सही नहीं है। सेट पे ऐसा हुआ, मेरे को कई बार उन्होंने बोला कि आदित्य थिएटर नहीं कर रहे हैं, वी विल नॉट गो लाउड, we'll go little easy, keep it slow, just keep it yourself, keep it a very because TV acting and theater acting are very different, very different, correct। तो वो रहता ही है। एक ये इंसाइट मुझे अभी आपसे मिली है कि थिएटर जब कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी लाउड एंड ऑफ कोर्स जब आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास माइक्स हैं तो यू हैव टू बी लो। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपको डिस्क्राइब करने हो दोनों थिएटर एक्टिंग एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड एक्टिंग, तो आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? So this is I would say theater is something that where actor can take a liberty to do these things, जैसे आपके पास लाइन्स हैं, आपके पास स्क्रिप्ट है, बट अगर आप कभी कुछ बीच में खो रहे हैं या लाइन भूल रहे हैं या अपना एक नुआंस भूल रहे हैं, आप उसके अंदर इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। फिल्म के अंदर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास होती नहीं है। फिल्म इज मोस्टली अ डायरेक्टर्स मीडियम, एटलीस्ट आई फील इट लाइक दैट। मुझे लगता है फिल्म जो है वो डायरेक्टर का इंस्ट्रूमेंट है, वी आर जस्ट एक्टर्स, वी हैव टू कन्वे द मैसेज फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू द ऑडियंस, as an actor, इतना ही कर सकते हैं, that's all we can do, but we can just emote the written words that has been said by the director or thought by the director or his vision. So मुझे लगता है कि film acting is very subtle and it's like living the moment. Theater is unique, improv, special, at the same time can be very heart-filling. It just fills you with all the love because it's an instant gratification on stage. You do a performance and then people will clap for you. Correct. But films, you don't know what works because there are moments in film when you see that यार ये वाला scene मैं look up to कर रहा हूँ, मेरा ये scene आएगा ना, देखना फाड़ दूंगा. But the moment that scene comes, you see the audience just took it lightly. And there are some scenes that you do which were just okay scenes, but audience said, क्या किया यार? The main example is Akshay Khanna doing exactly. this. So that was not even planned. तो जैसे ही मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा दोस्त मुझे बोलता है, यार ये क्या किया? तो मैं बोलता हूँ, देखा कितना अच्छा किया, जबकि मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया था। हाँ, it's living that moment. Okay, तो मतलब huge difference है, I can see that, right? Yeah, definitely. तो आदित्य को अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ऑफ कोर्स। मैं आपसे जानना चाहूंगी उन दिनों के बारे में जब आपने एक्टिंग सीखने की शुरुआत करी थी, प्लीज मुझे उस बारे में जरा बताएं। मैंने आपको जैसे बताया कि जब स्कूल से शुरू हुआ तो आई रियलाइज यार ये सीखना पड़ेगा, मतलब I did not had an opportunity to go to an NSD or a proper stage repertory, but there was a lot of teachers, my seniors, my friends who belong to NSD, FTI, जिनके साथ बैठ के बात करते वक्त आप उनके साथ बहुत कुछ सीखते हैं। और जब वो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में हमारा एक पूरा क्लब बना तो काफी एक दूसरे से सीखने को मिला। एंड समटाइम्स सी फॉर कैमरा ना पूर्वा, आई फील फॉर कैमरा डजंट रिकॉग्नाइज एन एक्टर वेयर यू कम फ्रॉम, द कैमरा डजंट पुट अ बैच टू यू दैट यार ये एनएसडी का एक्टर है या ये बिना सीखा हुआ है, इट डजंट डिस्क्रिमिनेट। स्टेज माइट,
I'm not too sure, but camera doesn't. So you know, you should keep your natural flavor. मैंने बहुत वेट किया, कई बार मैंने एज अ wannabe actor you try to mimic other people कि यार मेरा ऑडिशन क्लियर हो जाए. Correct. It doesn't work. Okay. So, and when it has to work, you just need to be yourself. Because the character that I played in Dhurandhar is a real life character. Yes. And your look needs to match with him. Your somewhere your oratorship needs to match with him. Your style needs to match with him. And it's a combination of so many things. तो मुझे लगता है गेटिंग फिल्म्स इट्स डेस्टिनी, बट यस प्रेपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्कूल, कॉलेज, किंगडम ऑफ ड्रीम्स, इवन व्हाइल आई वाज डूइंग माय मार्केटिंग एजेंसी वर्क, व्हाइल आई वाज वर्किंग देयर, व्हेनेवर यू गेट टाइम यू वॉच गुड सिनेमा, एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू फिनेस, to get that finesse and, you know, polish yourself. Okay, so this could be a controversial question, but as we can see around, बहुत सारे content creators हैं जो आए दिन videos बना रहे होते हैं. जब वो बहुत famous हो जाते हैं to an extent, they get roles. तो इस पर आपका क्या point of view है? Do you believe कि जो content creators हैं उनको acting classes की जरूरत है, और do you believe कि वो काम करते 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 या कैमरा फेस करते करते पॉलिश हो जाएंगे? ये सच में कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. आई फील यू नो, आप किसी को भी इसलिए अपनी फिल्म में नहीं ले सकते. सी इट्स अ पॉइंट, लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, राइट? ये डायरेक्टर के अप्रोच पे बहुत डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए. अगर उन्हें जेन्युइनली एक्टर चाहिए तो वो कभी भी किसी कंटेंट क्रिएटर को नहीं लेंगे. ही वुड नॉट, बिकॉज ही नोज दैट मेरा पर्पस पूरा नहीं होगा. बट अगर उनको अपनी फिल्म को मार्केट करना है तो ले सो तो कंटेंट क्रिएटर भी ले सकते हैं. देन यू कैन टेक सिंगर्स आल्सो, देन यू कैन टेक एनीबॉडी, बिकॉज दे हैव गॉट इक्वल फैन फॉलोइंग. इट डजंट मैटर. यस, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ फॉलोअरशिप, but I don't think the key main stakeholders are still ready to work with content creators. I think content creators are doing amazing with what they know the best. वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. You know, you name the content creator, the top 8, top 10 of our country, they are doing amazing job. And I think they should do that. But अगर वो उसके साथ एक्टिंग को पुल ऑफ कर सकते हैं, why not? I mean, it should be, it's an open platform for everybody. And अपूर्वा, we all evolve in our life, you know, है ना? हम सब सीखते हैं, evolve होते हैं. हो सकता है आज मैंने ये किया, मैं 2-4 साल बाद अगर मुझे लग रहा है मैं लेट्स से सिंगिंग ट्राई करना चाहता हूँ, और मैं मे बी आपकी तरह एक बेहतर आरजे बनना चाहता हूँ, तो आई कैन ट्राई, आई शुड ओनली डू इट प्रोफेशनली वंस आई एम रेडी फॉर इट. मैंने अभी कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखा who are taking acting seriously. They have a lot of followers, but उसके बावजूद भी they are now going to theater. They are doing that properly, and then they are coming back to कि हाँ भाई हम acting करेंगे. Actually, Bombay में there are a lot of theater workshops happening. Okay. Actors have taken their jobs very, very seriously now. Rather, in fact, I'll finish this season of media interactions and all. I'm also going for a new workshop. Okay. Because it's always good to learn and you know, experiment with yourself. Because कई बार मुझे भी नहीं पता मेरे अंदर क्या कितना है, and you know, am I exploring it to my best? Correct. So what is to be done is to that you try learning new tricks and trades of the business. चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म में हैं, आपके लिए सीखना तो बहुत ही जरूरी है कि मैं इसके अंदर नई नई चीजें अपने आप को एक्सप्लोर करूं. सो आई एम आल्सो गोना डू दैट. बट कमिंग बैक टू योर कंटेंट क्रिएटर्स वाला पार्ट, इफ दे आर डूइंग एंड दे आर लर्निंग, दैट्स द बेस्ट थिंग. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काम कर रहे हो उस पर, तो आई थिंक दैट्स जस्ट ग्रेट, राइट? ओके, तो हम अगर बात करें स्पेसिफिकली टू धुरंधर, अबाउट धुरंधर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि आप स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही हो या टेबल रीडिंग चल रही हो कुछ सेलेब्स के साथ, एक्टर्स के साथ, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ योर्स? Okay, so there is a great story that I don't think anybody knows. या मैंने किसी भी मीडिया हाउस में इससे पहले किसी को बताया है. Yes, this is exclusive with you. I think I'm probably one of the last casting done. Oh. Yeah, so उमार हैदर की जो कास्टिंग हुई है, that's probably the last casting done. और मेरे से कास्ट होने से पहले मूवी शुरू हो गई थी. Because I think they were, I'm not sure, but I think they were still trying to figure out who will play this character. Okay. And they had to start because schedule was already ready. Okay. तो मेरे को बहुत टाइम बाद कॉल आया, और जब कॉल आया मूवी वाज ऑलरेडी ऑन. सो आई मिस दैट सेशन ऑफ स्टोरी रीडिंग विद द एक्टर्स. बट आई हैव हर्ड दैट आदित्य सर ने पूरे एक्टर्स को एक अच्छे होटल में बुला के, इट वाज अ बिग बॉलरूम काइंड ऑफ अ सेटअप, जहां पर सबको बुला के स्क्रिप्ट रीडिंग और उनका एक्सपीरियंस शेयर किया था. आई वाज नॉट लकी टू बी पार्ट ऑफ दैट. But now that I know of it, I feel I should have done that. But ठीक है,
कोई नहीं, नहीं नेक्स्ट टाइम next time. अच्छा, तो सर अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स टेबल रीडिंग होती है, समटाइम्स आपका सीन है, कभी कभार किसी और एक्टर का सीन Yeah. चल रहा है, और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हमारा सीन आने वाला है हम तो नर्वस होते हैं, कभी कभार हम किसी एक्टर की इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर भी नर्वस हो जाते Yeah. हैं। तो आई नो यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, Yeah. बट कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा यार मैं नर्वस हो रहा हूँ? सारे सारे हाउ? मैं आपको वो बताता हूँ कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि आप कितने भी लर्नेड हो ना, व्हेन यू आर वर्किंग विद द मास्टर्स, ओके कहीं ना कहीं आपको यू नो यू आर लिटिल, यू वांट टू डू योर बेस्ट, ओके यू नो, यू डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीबॉडी ऑन द सेट। मेरे दिमाग में भी यही था। आई वाज नॉट एट बेस्ट ऑफ माय हेल्थ आल्सो दैट टाइम व्हाइल आई वाज शूटिंग द फिल्म, बट नॉट दैट टू कि वो कवर अप करने के लिए, बट क्या होता था कि आप चाहते हो बेस्ट करो अपना, पर मुझे पता नहीं ऐसी एक फीलिंग है, आई डोंट नो, आई हैव नॉट स्पोकन टू आदित्य सर अबाउट इट, आई विल चेक विद हिम वंस व्हेन आई मीट हिम नेक्स्ट। मुझे लगता है उन्हें कहीं ना कहीं पता चल रहा था कि ये नर्वस है, अच्छा, क्योंकि मैं संजय सर के साथ हूँ पूरा टाइम, एंड ही इज लाइक, यू नो, द मैन आई वर्शिप, ओह you know, we all have grown watching him as a mega superstar on films, और मैं हर दिन उनके साथ खड़ा हूँ। It's like a feeling which is surreal and it's probably मेरे को वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। ओके और फर्स्ट डे जब मैं सेट पे गया और मैं उनके साथ खड़ा हुआ, तो मैंने बोला सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि what do I feel about you। कह रहे हैं अभी लाले, अभी तो और बड़ा करना है कुछ कुछ। So he is very sweet, loving, and he's got a great warmth in him. ओके You know, he'll not make you feel uncomfortable. In fact, अभी धुरंधर 1 भी जब we finished, we met, we were doing a patchwork. ओके तो उसके लिए दोबारा एक सीन करने के लिए बुलाया गया। हाँ। तो while I met him, तो the film did really well. He himself came and congratulated, कह रहे हैं उमार पिक्चर बढ़िया कर गई। तो मैं कहा सर मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। कह रहे हैं अबे हम साथ में थे ना। His style is like, his candid, his करेक्ट you know, his bindas type. So great experience. Akshay sir, look at Akshay sir. Working with him, understanding him, we had a lot of chat. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बहुत काम थे, बट मेरी और उनकी तो बहुत चैट्स हुई हैं। I love talking with him because वो मेरे मे बी वो he's selective and you know his style is different. सिलेक्टिव ना, हाँ। हाँ, तो मजा आया। तो कौन सी ऐसी बातें हैं इन एक्टर्स की जो आपको याद रह गई? इफ यू टॉक अबाउट संजय दत्त, मुझे संजय सर का बात करने का स्टाइल, और वो कुछ कमाल की बातें ऐसी बोल जाते हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। तो मैं वो जो उनकी बातें हैं वो मैं जिंदगी भर चेरिश करने वाला हूँ, बिकॉज मोर देन his lines, his work, I miss him behind the stage. Oh. You know, when the cameras were off, that's my Sanjay Dutt, because you know, वो संजय सर, he's magical. वो सेट पे ना माहौल भी वैसा बड़ा लाइट बना के रखते हैं with his team, with the cast and crew, with all of us. He'll keep it very light, and most of the time he's discussing food. So I love that thing about him. Is he a bit intimidating? मतलब अगर मैं उन्हें स्क्रीन पे देख रही हूँ तो मैं स्क्रीन से ही ऐसे हो जाऊंगी कि ओह गॉड अगर ये सामने आ गए तो क्या बोलूंगी कभी? Is he that? No, he's very loving. Very loving, But fun. on screen, when he gets a character, I think कई लोग ना naturally बड़े वो होते हैं, you know, Powerful powerful. personality, हाँ। When the cameras goes on his face, no, I think he looks like a tiger, and like you know, he's a lion. Correct, he's a lion, correct. and his voice, his aura while he walks. Aura. Oh, he walks, and then you look, you know, you feel like, and some people think it's for films how he walks and all, but that's his normal walk. Oh. I've seen him behind the scenes, and you know, he just walks normally. And when Sanjay sir is walking, then the world is watching. Oh. You know, it's like that. Okay. Coming to अक्षय खन्ना सर, वो कैसे हैं? उनको देखकर हमें लग रहा होता है कि he is very into his art and introvert, calm, of course great actor. ये हमारा पर्सपेक्टिव है दूर से, पास का पर्सपेक्टिव आप बताइए। No, you're half right. He's calm and very focused towards what he's doing at his work. But मेरे मतलब जितना टाइम मैंने स्पेंड किया ना, मेरे कुछ couple of scenes में जहाँ पर हम साथ थे, while his arrest was happening and all of that, तो वो तो जब उनको टाइम मिलता था तो बात करते थे. He is very nice. He would not faff around and all. I mean, you know कि वो सेट पे किसी के साथ भी घूम रहे हैं, बट हाँ वो बात करते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं. He would discuss what's happening on the current affairs things. He's like that, so he's very good. हाँ but ये है कि he's got his unique style, Apurva. You know, he would sit down, focus at his thing, his work. For him, that outer world of that social media, pictures, popularity, this, I don't think he is into that. He'll come, he'll do a great job, he'll go back to his vanity, and that's him. That his style is different. So coming to another actor, which is of course everyone's favorite, that is रणवीर सिंह. कौन सी ऐसी बात है उनकी जो आपको याद रह जाएगी? रणवीर भाई के साथ मेरे को मेमोरीज याद हैं. You know, he's one man who's everybody says he's full of energy.
rather I felt different this time. Okay. I felt this time he was not that Ranveer Singh that we all know of. Okay. At least what I have seen him, he was very composed, Apurva, this time. Oh. He was constantly at his script. I have not come across a man who could be so diligent, disciplined. In fact, whenever I was doing my scenes and if he was around and watching on the monitor, you know, I've seen him actually coming to me, like this is the camera placed. Huh. He was standing there and he said, Omar, do it hard, go full throttle. Like he would try to enhance your scene also. Oh. You know, he believes in making a film good. The product should be good, not just his scenes and his thing. So he would always help and support. He'll say, sir, aaj aapka scene hai, sir. Aaj to aapne faadna hai. You know, he would just make it like this. He has got that aura. But when he's doing his scene, I have some scenes with him. Okay. And, you know, he has made them look magical. Okay. Magical. That's amazing. That's amazing. अभी हमने जब उन्हें of course मूवी में देखा तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक डिफरेंट अवतार भी हमें उसमें उस मूवी का देखने को मिला लेकिन इस मूवी में ज्यादा इनके डायलॉग है नहीं फर्स्ट में, yes. हाँ फर्स्ट में Correct. हमें फर्स्ट के बारे में ही पता है करेक्ट सेकंड के बारे में सर आपको पता है थोड़ी सी स्कूप अगर मिल जाती तो बिल्कुल मिलेगी आपको बस एक बार रिलीज होने दो ओके ओके तो सर कभी कभार जब हम ना काम कर रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर तो हमें लग रहा होता है कि यार ये ना अच्छी हो रही है और कभी कभार उसका आउटकम उतना ग्रैंड लगता नहीं है दिखता नहीं है क्या ऐसा आपके साथ धुरंधर के साथ हो रहा था कि यार इसका आउटकम मुझे नहीं पता कैसा होगा या आपको कहीं ना कहीं पहले ही दिख रहा था कि डैम दिस इज गोइंग टू बी एपिक I have a mixed feeling for this. क्योंकि obviously you are reading scripts and you have other people's scene also in it. तो मुझे तो पढ़ते ही समझ आ गया था कि this is going to be epic. मतलब it's going to be big and big in the kind of you would not have seen a film like this in that kind of scale it's made. And that star cast and that content. Even if you look at the other secondary characters, all of us, we all were newcomers in the film. You see a lot of TV actors were there, are part of the film. So he has not kept any kind of those stereotypical types things that टीवी के एक्टर्स नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे. he really wanted to make good content. और अगर आप मेरे से पूछोगे कि तो स्क्रिप्ट इतनी दमदार थी कि असली धुरंधर स्क्रिप्ट ही है. क्या बात. बट वो जो मोमेंट आप पूछ रहे हो कि वो मोमेंट कौन से हैं जब आपको लग रहा था कि नहीं कर रहा था, नहीं, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के समझ आ गया था ये सुपर हिट फिल्म है. मुझे समझ आ गया था कि ये कैरेक्टर्स बहुत बड़े हैं बट ये इतने बड़े हो जाएंगे अपूर्वा, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड. एंड आई थिंक ओनली probably he knew it because he was writing it and we all were given our parts. Okay. Like and Omar Haider would know his part of his script. तो मेरे को दूसरों के साथ क्या चल रहा है बहुत पता नहीं है. Okay. ये तो फाइनल प्रोडक्ट देख के समझ आया कि oh my god, this is how I was planted or I was shown or I was kind of positioned in a certain way. Okay, तो कभी कभार ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता कि आपको आपका वाला पार्ट पता है बट नाउ यू डोंट नो व्हाट द इमोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन इज. क्या ये डिफिकल्ट होता है? No, it is How do you deal with that? It is difficult. Okay. You are absolutely right. Because I think any actor for that matter, किसी को भी अगर एक बैकग्राउंड चाहिए कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ या इस सीन के पहले क्या हुआ है तो वो चाहिए होता है. बट आई हैड शुरू के 2-4 दिन मुझे ये चीज बॉदर करी थी. Okay. Because I did not know him. Okay. But वो ना मुझे सीन के टाइम पे बुला के बता देते थे अच्छा. कि आदित्य हम ये सीन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि whatever reasons. या ये सीन हम इसलिए ऐसे करेंगे क्योंकि अदरवाइज किस डायरेक्टर के पास टाइम है, द काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज, उनको क्यों पड़ी है कि मैं किसी एक एक्टर को बुला के ये बात बोलूंगा कि इसका ये बैकग्राउंड है. उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी है, आप अपनी लाइंस करो, प्रिपेयर करो, आओ. तो कई बार ऐसा होता था तो मैं उनसे पूछ लेता था कि सर मैं कहाँ से आया. या ओजस जो उनका डीए था, ओजस गौतम, जिन्होंने ही वाज अ डीए एंड जिन्होंने जितने प्रोमोस काटे हैं, ट्रेलर्स काटे हैं, ही वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. सो मैं कई बार आदित्य सर के पास नहीं आता, मुझे लगता है डांट देंगे मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ और तेरे को अपने लाइन भी पड़ी है. हाँ, अब मैं क्या. तो आई यूज्ड टू गो टू ओजस अ लॉट. And Ojas is one sweetheart. He is very patient. Going to be next big director one day. Okay. I am sure about it. तो वो मेरे को बहुत हेल्प कर देता था कि आप इधर से आ रहे हो, ये इंटेंट था, बैकग्राउंड में ऐसा है, तो अब आप अपनी लाइंस उस हिसाब से लो. So they're very helpful. The entire team of B62, I think it's amazing team. Okay. तो जब मूवी बन गई तब आपको कहीं ना कहीं हिंट है कि दिस इज गोइंग टू बी एपिक. फिर आपने ऑफ कोर्स जब मूवी देखी
तब what was your reaction to it कि यार oh God, was that Yeah. something like it? It was like this. It Okay. was like this. I was shocked. I was totally, astonished to see कि किस तरीके से चीजें बन के आई हैं. कुछ सीन बहुत बेहतरीन निकल के आए. कुछ सीन मेरे को लगा यार इसके अंदर ये कर सकता था. मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ. क्योंकि मैंने एक दिन आदित्य सर से सीन करते करते ये बात पूछी कि सर मैं I told him I'm new to films and I'm trying my things. So he said देखो कुछ भी दिक्कत हो मेरे से पूछ लिया अगर बात कर लिया अगर. ठीक है. तो मैं उनसे एक दिन पूछने गया कि सर सारे एक्टर्स ना मॉनिटर में कई बार देखते हैं अपना सीन करने के बाद. हाँ. और मैं कभी नहीं देखता था. अच्छा. तो मैं एक दिन मुझे लगा मुझे भी देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ. तो आई वेंट टू माय सेट सर मुझे मॉनिटर देखना चाहिए. कह रहे बिल्कुल नहीं, चुपचाप बैठ जा. अच्छा. And he said, either you have trust in the director, so just don't watch. Okay. You do a performance. If I've said it's good, it's good. It's good. If it is not, then I will retake it. Okay. So you should focus on your work. Don't focus on how am I looking, कहाँ जा रहे हो, आपका impact आएगा. You have to understand what character you're playing. Apurva, that's very important. I am not the leading man in the film. Correct. I'll be very honest. What happens is when you're a leading man, lot of things are at your stake. I am playing a genuine cop. Cop. I am ASP Lyari. I am Sanjay Dutt's right hand. Right hand. Chaudhary Aslam's right hand, and I have to be with him. Whatever he says, I have to do it. I have to take the right factual things and present. So I can't be very emotive as a person. That's what I worked in my head as a character. Okay. कि मेरे को बहुत ज़्यादा acting emotions नहीं करने हैं. I'm a cop. I have to do my job, and I'm here to do my targets with a senior cop, which is Chaudhary Aslam. He will do all the major things. But while the stories move ahead, life brings in a new change in Omar. Then Omar does few things which are, which you'll see. Yes. Okay, okay. वही बेसिकली वही वाली बात है कि आपको अपने कैरेक्टर के लुक्स कैसे लग रहे हैं, कैसा दिख रहा है, क्या उससे नहीं, वो जो काम है that is the main thing. I think so. Yeah, that's more important. ओके तो काम तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है ही, बट आई बिलीव कि फन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कैन यू रिकॉल अ फन मोमेंट व्हाइल यू वर शूटिंग फॉर धुरंधर? One fun moment that I remember the most is, they called me one day from Delhi because I'm in Delhi. So I flew from Delhi and, we reached and something happened and then we couldn't shoot only. Oh. I went back and then next day the call came that we are still shooting and then I was already gone. So that was like a very funny thing that happened because, the film was shot in a span of 2 years. Yes. And we all were occupied. I could not get my haircut done or because, you have to carry a certain look. So आपको ना आप कुछ नया चीज ट्राई कर सकते हो, ना कोई एक नया ऑडिशन दे रहे हो या कोई एक्ट फिल्म नहीं कर पा रहे हो because, that look is not going with the other projects. So वो बहुत फनी हो गया था एक दिन की, मतलब that moment was very funny. ये वही ना, बताइए, हम छोटी छोटी चीजें ऐसी सोच ही नहीं पाते कि आपको वो लुक कितने टाइम तक मेंटेन करना पड़ रहा है. 2 साल तक हेयर कट नहीं किया. नहीं, you just trim every time you go on the set. मतलब काफी पैसे बच गए. That's a good thing. क्योंकि आपकी शेव हो रही है तो वही हो रही है, आपका हेयर कट हो रहा है तो वही हो रहा है. So you saved a lot of money. You see the brighter side of it. सही है, पॉजिटिविटी हर जगह ढूंढोगे तो सही रहेगा. ओके, तो ऑफ कोर्स फन के पार्ट पर हम सर आ चुके हैं, तो आई हैव सम धुरंधर सवाल जिनके मुझे धुरंधर जवाब चाहिए. आर यू अप फॉर इट? लेट्स गो. ओके, ठीक है. तो सर हम शुरुआत कर रहे हैं कि रहमान दके या मेजर इकबाल, इनमें से अगर आपको मौका मिले किसी का ग्रुप ज्वाइन करने का, तो हु वुड दैट बी? Interesting area. मेजर इकबाल. Okay. Because I feel मेजर इकबाल के जो लड़के थे वो थोड़ा लंबा जिएंगे as compared to रहमान डकैत के. वो चले गए हैं. They've done their job. कट लिए हैं. तो कुछ दिन और जीने की चाह रखते हुए मेजर इकबाल. ओके, चलिए ठीक है. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन एक्टर्स से आप क्या चुराना चाहेंगे? योर फर्स्ट ऑप्शन इज रणवीर सिंह. रणवीर सिंह के कपड़े, उनके सारे गुची के ब्रांडेड कपड़े, उनके स्लिंग बैग्स, उनके शूज, बिकॉज मेरे को उनका स्टाइल बहुत पसंद है. कई लोगों को नहीं पसंद है, बट आई लव व्हाट ही डज एंड हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ. ही इज अ स्टार, ही लुक्स लाइक वन एंड देन ही डिजर्व्स ऑल दैट अटेंशन. मुझे मौका मिले ना, मैं तो उनकी एनर्जी चुरा लूं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी भयंकर एनर्जी बॉल बनकर जाएंगे कहां. इतनी भयंकर उनमें एनर्जी. देयर इज ओनली वन रणवीर सिंह एंड ही कैन बी द रणवीर सिंह. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज अक्षय खन्ना.
अक्षय सर का फोकस एंड हाउ कैन ही बी सो काम ऑल द टाइम, मतलब मैं थोड़ा सा ना मेरे को मैं थोड़ी देर बात ना करूं तो मैं एंग्शियस हो जाता हूँ, सेम है। ये है ना, मतलब बात ही नहीं कर रहे हो आप किसी से और आप इतने सारे 250 लोग, शादी हो रही है, फिल्म सेट्स अपूर्वा, दे आर जस्ट लाइक अ मैरिज हैपनिंग, यू नो, देयर केटरिंग, तो फिर खाना ही खाना लगा हुआ है, इक्विपमेंट पड़े हैं, बंदूकें पड़ी हैं, लोग बैठे हैं, कॉस्ट्यूम्स पड़े हैं, ये शादी है, इट्स जस्ट लाइक अ मैरिज। और इतनी बड़ी शादी के अंदर आप चुपचाप बैठे हैं एंड यू नो यू जस्ट नो व्हाट यू आर हियर फॉर, मतलब इट्स अ ग्रेट थिंग। बट अगर ये मैं सीख लूं तो शायद मेरे परफॉर्मेंस पे 4 चांद लग जाए। ऐसा ना, एक तो मैंने ये और देखा है, जो लोग चैटी होते हैं ना उन्हें लोग बड़ा ऐसे हल्के में ले रहे होते हैं, और जो शांत होते हैं उन्हें बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत इसमें गहराई होगी। ऐसे इन चक्करों में एक्टर और रह जाते हैं। तो रह जाते हैं। Okay, moving on to our next actor, which is Arjun Rampal. His style, his you know, his charm, his voice. Hotness. Yes, hotness, obviously. But you know, Apurva, I was shocked. This time, while you have spoken a very valid word for it, you know, women generally are very charmed by his appearance and his style and his voice, because he's a handsome man. But with the look that he is holding in Dhurandhar, ये कोई बहुत खूबसूरत लुक तो नहीं है, बट उसके बाद भी लोग उनको इतना पसंद कर रहे हैं, और उनका एक ड्रास्टिक लुक में एक बदलाव आएगा जो आप देखेंगे। बट यू नो, आई थिंक हिज स्टाइल इज ऑरा एंड हिज वॉइस, कमाल की आवाज है उनका सच में। मतलब वो अगर बोल रहे हैं तो आप उन्हें सुनोगे, मतलब आप इग्नोर कर ही नहीं सकते उस चीज को। करेक्ट। एंड सेम गोज विद संजय दत्त, आप उनका ऑरा इग्नोर नहीं कर सकते। आपको कुछ चुराना हो उनसे तो आप क्या चुराएंगे? उनके पठानी सूट, यू नो, ही वो जो आपने उनको देखा है ना फिल्म में, वो जब आते भी थे ना तो अपने घर से भी वही पहन के आते थे, और उनकी वो पैंथर वॉक, यू नो, नोबडी बीट्स दैट सुपर वॉक व्हाट ही डज। और जिस तरीके से वो कुछ खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मैं वो भी उनसे चुरा के लाया हूँ, और मैं अमूमन जिंदगी में उनको यूज करना चाहता हूँ, जो मैं आपको बता ही नहीं सकता। पर आप समझ गई। समझदार लोग हैं यहाँ। He is awesome, he is great. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, ऑफ कोर्स हम एक्टर्स की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में अचानक से ये सवाल आया कि क्या जब अक्षय खन्ना की एंट्री वाला जो स्टेप था, वो जब रिकॉर्ड हो रहा था, जब शूट हो रहा था, क्या किसी ने भी सोचा था दैट दिस इज गोइंग टू बी सो बिग? I really don't think so. क्योंकि जब वो शूट हो रहा था तो वो आई थिंक अक्षय सर रिक्वेस्टेड कि मैं इसको एक और तरीके से करना चाहता हूँ, या मैं ऐसे करना चाहता हूँ, एंड आदित्य सर वुड हैव ऑब्वियसली अलाउड, क्योंकि वो हर चीज वो यू नो, आदित्य सर अलाउज यू टू इम्प्रोव बट नॉट ऑलवेज अंटिल अनलेस ही इज श्योर अबाउट व्हाट ही वांट्स। तो वो उन्होंने जब किया तो जब वो करके आए तो उनको सबको लगा अरे मजा आया, अच्छा कर दिया, बट नोबडी न्यू इन द एंटायर सेट्स कि ऐसा हो जाएगा। इनफैक्ट जब मैंने भी फर्स्ट डे फिल्म देखी तो जब वो सॉन्ग आया तो द म्यूजिक इटसेल्फ इज सुपर्ब, द एंट्री इज वेरी कैची, ही इज लुकिंग स्टनिंग, यू नो, विद दैट ब्लैक entire thing attire that he's wearing, and I saw and I said यार ये तो फेवरेट मोमेंट है, बट बाय द टाइम बिकॉज फिल्म 4 घंटे की है एंड शाम तक जब तक मैं घर आया द इंस्टा फीड वाज filled with it. I mean there was nothing else but Sher Baloch. You know, so it's sometimes I would say, you know, sometimes some कुछ मैजिकल चीजें होती हैं अपूर्वा, जो फिल्म्स के अंदर जो आप लिख नहीं सकते हो वो हो जाती हैं, बन जाती हैं। I think that's that moment. वही मुझे, मतलब सच में पूरी मूवी इतनी लंबी है, उसका हर मोमेंट, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगा था कि मूवी टोटल तो अच्छी है बट उसके छोटे छोटे चंक्स जो हैं, आप हर चंक को अगर देखोगे इट इज अ मास्टरपीस, और उसके बीच में एक मास्टरपीस ऐसा निकल आया जो आउट ऑफ द वर्ल्ड ही हो गया है, बिल्कुल पूरे इंस्टाग्राम पर छा गया है। इन जनरल मुझे तो ऐसा लग रहा था कि धुरंधर के बारे में भयंकर बात इस सॉन्ग वजह से हो रही है, इस वायरल स्टेप की वजह से भी हो रही है। You're right. That red screen, if you remember, जो रेड स्क्रीन आती है स्क्रीन पे, और जब वो टेररिस्ट कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आई थिंक वो भी अपने आप में एक यूनिक है, कभी भी फिल्म्स में ऐसा कोई ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिला। सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो न्यू थिंग्स दैट हैज बीन ट्राइड ऑन फिल्म्स। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए बहुत गट्स चाहिए होते हैं, और इस मूवी के लिए भी बहुत सारे गट्स चाहिए थे, जो कि ऑफ कोर्स यूज हुए हैं, और वो निखर के भी फिर ऑफ कोर्स आई। बिल्कुल। ओके, तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाइपोथेटिकल सा सवाल है कि रणवीर सिंह के अलावा बॉलीवुड में कौन से हीरो को आपको लगता है कि ये रोल मिल सकता है और वो कर पाएंगे? योर ऑप्शंस आर
सलमान खान, विकी कौशल, शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और आमिर खान ये रोल कर सकते हैं? I think Vicky Kaushal. Vicky bhai would be amazing choice. Why? One, I think he's got that thing what is needed in Hamza. You know, that kind of calm, composed work, and he's also worked with Adi sir in that kind of a template. You know, the templates are very important. और वो दोनों film similar format की है. So I think Vicky Kaushal would have done a better job as compared to other actors. Other actors. Okay, ठीक है. आदित्य, आपने आदित्य सर के साथ काम तो कर ही लिया है. And of course, I feel that you are blessed because इतना अच्छा रोल, इतने अच्छे डायरेक्टर. But अगर ऐसा होता कि आपके पास दो ऑप्शन होते कि एक तरफ से आपको एक बहुत ही बड़े XYZ कोई भी डायरेक्टर की मूवी मिल रही होती, एक तरफ आदित्य सर की ये मूवी मिल रही होती, एंड ये जो डायरेक्टर हैं ये भी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, कोई ऐसा है जिनको आप चूज करते ओवर है? सवाल ही गलत है. Nobody beats आदित्य धर. सर मेरे को 10 बार भी फोन करके कहेंगे ना दैट ये छोड़ के आ जा, I will have to go. I will have to go. Yeah, I can't say who am I, but I'm just saying that if I ever get an opportunity or if this situation is a truth, always Aditya Dhar. I'm an Aditya Dhar child. Let's say like that. मैं उनके क्लैन का हूँ, कुछ भी कह लो. That's very sweet. Yeah. अच्छा, तो लयारी में अगर आप स्पाई हैं, Yeah. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करेंगे? आप डांसर होंगे, आप शेफ होंगे, आप क्या आपका रोल होगा? आप वहां जाके कौन सी नौकरी ढूंढेंगे कि ये करूंगा मैं? स्पाई है लेकिन आप. मैं वो टायर पंक्चर वाला बनना चाहूंगा जो पंक्चर नहीं लगाते. सर आप एक बार आप अपना चेहरा देखो, एक बार देखो जो ग्लो आपके चेहरे पे है कैसे सेट होएगा? You know, I will be that अफगान बॉय, जो अफगान बॉय नहीं होते जैसे, और जो टायर पंचर लगा रहे होते हैं. मेरा वो बड़ा करने का मन था, पर मेरे को जो कैरेक्टर मिला वो बेचारा बड़ा सिंसियर ऑनेस्ट ऑफिसर है, वरना वो काजल वाजल लगा के और वो टायर छेदते हुए वही छुरा किसी को मार दिया. उसकी फीलिंग कितनी. सोच लिए भैया. हेलो आदित्य सर. यार कोई भी देख रहा है ना अगर, और कास्टिंग में अगर कोई है तो मेरे को ना गंदे रोल्स दो. अच्छा कुछ करने का मन नहीं है मेरा. देयर इज इनफ गुडनेस इन दिस वर्ल्ड. कुछ गंदा आपके चेहरे पे मैच नहीं हो रहा. मैं आपको बताऊं, मैं वो करवा लूंगा, आप टेंशन मत लो. आई डू एक प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग. ओके ठीक है सर. तो मैं लिटरली फैन थी धुरंधर के हर गाने की, मतलब जो दूसरा गाना आ रहा था वो वायरल हो रहा था. अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपके फोन की रिंगटोन आपको बनानी हो तो कौन सा गाना आप बनाएंगे? ना दे दिल परदेसी ये वाला, या आरी आरी आरी? ये बहुत टफ है. मतलब आई एम श्योर ये एज एन ऑडियंस पीपल हु आर वाचिंग अस, इफ दे विल हैव टू थिंक, वो कहेंगे यार कौन सा बनाएं. बट माय रियलिटी इज दैट आरी 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 उसकी फील अलग है. अच्छा. Yeah, it's a different feel now. The new mix. Okay. तो देखिए जब you know they say in the middle they say when the promo came, तो उसमें एक लाइन आई थी, you are still not ready for this. I think that got me goosebumps. That correct. मतलब मुझे सच में ऐसा लगता है ना, this movie itself is a masterpiece. Beat actor, actresses, कुछ भी production, costumes, makeup, songs, और just promo, teaser, trailer, everything. Watch anything, you will learn filmmaking. Exactly, beyond perfection, I would say. Okay, तो of course इतनी तगड़ी मूवी है हमारी, तो इस मूवी के ना बहुत सारे रूमर्स भी हमारे आसपास हैं. तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई क्रेजी रूमर आपने ऐसी सुनी कि अरे यार ये क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा तो कुछ होने ही नहीं वाला धुरंधर 2 में, या फिर ऐसा हुआ हो कि ये जा इधर रही है रूमर लेकिन जवाब इधर है? हाँ ये हुआ. अच्छा, कि कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअली ना बहुत सारी थियरीज चल रही है. ठीक है. सो अपूर्वा, यू नो हाफ ऑफ देम आर probably partially true, and half of them are absolutely not true. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भी YouTube पे कभी कुछ लगा लेता हूँ ऐसे कि चलो यार सुनते हैं इसने क्या रिसर्च करी है, और लोगों ने ना 20, 25, 30 मिनट के वीडियो बनाए हुए हैं रिसर्च करके कि मुझे लगता है ये हुआ होगा, बड़े साहब ये हैं वो हैं. एंड आई से अरे नहीं भाई नहीं, इसको रोक, यहाँ इसको ठीक कर ले. कई बार उसकी मदद करने का मन करता है, बट यू नो आई एम ऑल्सो अंडर a contract, I can't say, but you know there are so many rumors. इमरान सर आ रहे हैं. हाँ जी. वो विकी कौशल भागते हुए आएंगे, बड़े साहब ये बन जाएंगे. So I know there are lot many stories, but I don't think anybody knows what's the reality. Okay. The script was kept
in very very safe way. इतना अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है Yes, सब कुछ. yes. और हाँ, ये हम रूमर सुन रहे थे कि इमरान हाशमी is going to be there. Is that true or not? I have no idea. You have no hint? I have no idea. Like I said, I know my script. Okay, sir. Moving on to our last धुरंधर सवाल. Yes. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स रणवीर जो है वो मूवी के एंड में बड़े साहब को ढूंढ रहे हैं, मानना चाहते हैं. तो प्लीज जरा हमें समझाइए कि कौन हो सकते हैं ये बड़े साहब. आपको क्या लगता है? Who do you think? Let's understand your. बड़े साहब. I honestly can't guess. I think आप ही बता सकते हो. चलो ठीक है. तो आज once and for all, हाँ जी. आज ये बता ही देते हैं बड़े साहब कौन है. ओके. 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 19 मार्च मूवी हॉल जाए और आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें. यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी. वेरी क्लेवर सर, वेरी क्लेवर है ना. You know. मुझे मम्मी कहती थी कि कंचीली आंख आंखों वाले. वाले. ये मेरी मम्मी भी बोलती हैं. तो मैं कहता हूँ फिर मम्मी आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो? कहती हैं नहीं. ओके सो बहुत सारा फन हमने करा, बहुत सारी मस्ती हमने करी. हमें बड़े साहब कौन है ये भी ऐसे घूम के थोड़ा सा पता चला. बट इन दी एंड सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाली जो मूवी है, जो रोल आप प्ले करने वाले हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस थ्रू दैट मूवी, थ्रू दैट रोल? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Experience was amazing. Omar Heather in part 1 has been introduced. He's a right hand. He's watching the entire scenario. He's learning what is happening. वो सारे dynamics को understand कर रहा है, observe कर रहा है. A lot of political changes are happening. He's watching. A lot of gang wars are happening. He's watching. वो सब कुछ notice कर रहा है. Okay. और वो अभी इस समय संजय सर के साथ चल के ये देख रहा है कि ये क्या क्या हो रहा है. But in part 2, obviously, you will see new sequences and new things will turn around for him. Okay. And he will play a very very instrumental role in changing the scenario of the film. And Okay. that is amazing. Because अभी बहुत सारे characters के साथ जिसे कहते हैं ना एक फिनाले पे उतरने वाले हैं. So I think उमार हैदर का फिनाले अभी होना बाकी है and that's in part 2. क्या बात है. और आपके एक्सपेक्टेशंस भी बताइए हमें. मेरी expectations part 2 से बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि मैं part 1 देखने के बाद समझ चुका हूँ कि what is happening. Because since most of my scenes are in part 2, तो मुझे पता है part 2 के बारे में. The audience will go back with an experience of an international class cinema. Nice. Films like Paradise, films like yesterday only I saw a film called Project Wolf Hunting, which is into action as a genre. Okay. मतलब that level of standards are set. So it will not be an exaggeration, Apurva, if I say so, that Dhurandhar will set its own benchmarking. Nice. And tomorrow the new age people, actors or filmmakers or people from media, all of us will always look up to this film and name it अबे जा यार धुरंधर जैसी कोई नहीं types. क्या बात है. So I think that is something that's amazing. अभी ना सर काफी सारे वीडियोस और मीम्स भी बन रहे थे कि मूवी इज टू लॉन्ग. Yeah. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Yeah, it is long because people have to go to loo, eat, drink, sleep. But don't we do that every day in our life? I mean, it's a 3 hour 55 minutes. Let's say part 2 is that much, or part 1 was 3 hour 30 minutes. 30 minutes. So if that's the length, not even for 2 seconds or 10 seconds you feel like missing a scene. आपको मन ही नहीं करता कि मैं ये सीन छोड़ दूं, उठ कर जाऊं. है ना, या मैं उठ के जाऊं, या मैं इसको छोड़ दूं. इनफैक्ट अपूर्वा, रेपिटेशन इतना है वॉच पे दैट लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कहते हैं कि हमने मूवी को 2-3 बार देखा है. मतलब हमने एक बार नहीं, हम 2-3 बार हॉल गए हैं और अब नेटफ्लिक्स पे भी उसका व्यूअरशिप बहुत आया है. अब बताओ कहाँ गए 3 घंटे 30 कहाँ गए. अब ऐसे ही पार्ट 2 आएगी, उसके भी 4 घंटे होंगे एंड आई एम टेलिंग यू उसको भी लोग बार बार देखने जाएंगे. क्या बात है. ओके, सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी स्कूप ना देके भी देने के लिए. थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अपूर्वा. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ये वाला भी और आने वाले भी. इन द एंड, डू यू हैव एनी मैसेज to all the listeners out there, to all the viewers out there? I just want to say, watch good, listen good, and when it comes to listening good and watching good, one great platform is Big FM. They try to make sure that the good content reaches the right kind of audience, and so stay tuned and keep watching Apurva's show. Thank you so much. 92.